Students, in this class I am going to introduce you to a very interesting and very important topic, which is meiosis and mitosis. So this is a very important topic which you will study till higher classes, because this is very important and also very complex. It has many steps, many processes. In this class, you will study basics of meiosis and mitosis. That what is the meaning of these terms, or in processes में actually होता क्या है, and what is the main difference. Okay, so listen carefully. Both meiosis and mitosis are types of cell division. Cell division. So as you can see, division means cells divide to form new cells. राइट एक सेल डिवाइड होगी, दो बनाएगी, दो से चार से छः से 10, इस तरीके से सेल्स की ग्रोथ होगी. ठीक है. सो दिस इज सेल डिवीजन, दैट सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स. ओके. As you have also studied in chapter 5 fundamental unit of life, that न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो पहले से सेल्स हैं उन्हीं से दूसरी सेल्स बनती है, सेल डिवीजन. सो बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस आर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. देन व्हाट इज द डिफरेंस between meiosis and mitosis? Okay, first we will go through mitosis. First we will study the basics of mitosis, that what is mitosis. Mitosis is simple growth of cell. Mitosis is simple cell division for growth. Right? आपकी बॉडी ग्रो कर रही है. पहले फर्स्ट इनिशियली आप छोटे थे, देन यू ग्रू अप. हाउ? सेल्स डिवाइड. ओके, सो ग्रोथ, सेल्स डिवाइड टू ग्रो, दैट इज माइटोसिस. और whenever you get any injury, जब भी आपको कोई चोट लग जाती है या फिर आपकी बॉडी में कोई सेल डेड हो जाती है, then by process of cell division by mitosis, these dead or injured cells are replaced by new cells. Okay, so mitosis is simply division of cells for growth of cells or repairing of cells or replacing dead cells. Okay, so mitosis is a kind of cell division in which cells grow or they replace the dead or injured cells. That is simple mitosis. Then what is meiosis? If mitosis is this kind of cell division, what is meiosis? How is meiosis different? To study meiosis, first you need to know about some terms. First is reproduction, that what is the meaning of reproduction. As you can see, re means dobara, production, banana. Okay, so when an organism, any organism produces new offspring, another word offspring. Offspring होता है young ones, जो भी young baby होता है उसको हम offspring कहते हैं. ठीक है. So any organism makes new offspring of same kind, that is called reproduction. Okay, then you should know about gametes, that what are gametes. So gametes are a kind of cells. What are gametes? Gametes are a kind of cells. Which kind of cells? These are reproductive cells. So does it mean that our body has different kind of cells? Yes, generally our body has two kinds of cells. Okay, somatic and रिप्रोडक्टिव. सोमेटिक का मतलब होता है सिंपल जो सेल्स आपकी बॉडी में, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी में सोमेटिक सेल्स, नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट होती हैं. लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल्स कम होती हैं और ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होती हैं जिसको हम गैमेट्स कहते हैं. तो व्हाट डज गैमेट्स मीन? गैमेट मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल्स. सो रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नॉट लाइक अदर सेल्स. जैसे कि आपकी स्किन सेल्स हैं, स्टमक सेल्स हैं, ये नॉर्मल सेल्स हैं, इनको हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं. इनमें माइटोसिस होता है, सिंपल जो है एक सेल दो में डिवाइड हो जाती है, जैसे डिवीज़न होता रहता है. ठीक है. लेकिन मियोसिस में ये सेल्स नहीं, स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होती हैं जिसको हम कहते हैं गैमीट्स. सो व्हाट आर गैमीट्स? सो गैमीट्स आर नॉट नॉर्मल बॉडी cells, they are reproductive cells.
which are called sperm cells in males and egg cells in females. Okay, so that is the difference. There are two kinds of gametes, sperm and egg. So sperm is present in males and egg is present in female. So these are called gametes या फिर reproductive cells, and these are different from other body cells. Okay, so always remember this. So what is meiosis? So meiosis is also a kind of cell division in which sperm cells and egg cells or gametes are formed. Okay, so meiosis is a kind of cell division just like mitosis. But what is the difference? In mitosis, other cells are formed of same kind, but in meiosis, reproductive cells, yeah, gametes are formed, and gametes are egg and sperm. Sperm in males and egg in females. So that is the meiosis. So these are gametes, sperm cell and egg cells, and these are formed by meiosis. So one difference between mitosis and meiosis is about the kind of type of cells formed. ठीक है, माइटोसिस में नॉर्मल सेल्स बनती है, meiosis में गैमीट्स बनती है. ठीक है, what are the more difference or how gametes are different from other cells? To study that, you should go to chromosomes. What are chromosomes? As you know that humans have 23 pairs of chromosomes in each cell. 23 pairs का मतलब होता है 46. Okay, because 23 are pairs. So total 46 chromosomes in each cell of human body. And where this chromosome is present? This is present inside न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है जो आपको पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है. ठीक है, so inside nucleus chromosomes are present. Now you should know that chromosomes are also of two types. Chromosomes are also of two types. ठीक है, generally most of the cells में 23 pairs chromosome होते हैं. मीन्स पेयर्स में ये 2 क्रोमोसोम हो गया, एक पेयर हो गया. ये 4 क्रोमोसोम 2 पेयर्स, 3 पेयर्स 6 क्रोमोसोम. इस तरीके से 23 पेयर्स होते हैं. तो जो पेयर होता है, जो सेट में होता है, उसको हम कहते हैं डाइप्लॉइड. ठीक है, डाई मीन्स दो. तो दो क्रोमोसोम होते हैं एक सेट में. ठीक है, लेकिन जो आपके गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स जो अभी आपने पढ़ा, एग सेल और स्पर्म सेल, उसमें 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते. नो 46 क्रोमोसोम्स. उसमें होते हैं सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स. 23 पेयर्स नहीं. 23 पेयर्स का मतलब हो जाएगा 46. 23 पेयर्स नहीं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. इट मीन्स कि उसमें पेयर्स होते ही नहीं हैं, सिंगल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. सो सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स या फिर सिंगल क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो गैमेट्स में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में और नॉर्मल सेल्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस किसका होता है? क्रोमोसोम्स का. कि गैमेट्स में 23 होंगे और अदर सेल्स में 23 पेयर्स होंगे. ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए. सो मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या होगा? व्हाट विल बी द मोर डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस? तो एक डिफरेंस तो अभी आपको समझ आ गया है कि माइटोसिस में नॉर्मल सेल्स जो बनती हैं उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन जो मियोसिस में सेल्स बनती हैं उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे. ठीक है, ये सिंपल है. ऑलराइट. सो माइटोसिस में क्या होगा? माइटोसिस में एक सेल होगी और एक सेल जो है 2 में, फिर आगे 4 में ऐसे डिवाइड होती रहेगी. लेकिन मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से पहले 2 सेल्स बनती हैं और वो 2 सेल्स फिर जाकर 2-2 में डिवाइड होती हैं. तो कुल मिलाकर 4 सेल्स, फाइनली 4 सेल्स बनती हैं. किस में? मियोसिस में. और माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती हैं.
जो मेन सेल है उसको हम मदर सेल बोलते हैं, ठीक है, जो मेन सेल मदर सेल, और जो दो सेल्स जो जितनी भी सेल्स बनती हैं उसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं. सो इट मीन्स दैट इन माइटोसिस टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन मदर सेल. मदर सेल डज नॉट मीन दैट इट इज़ फ्रॉम मदर. मदर्स मीन्स सिंपली मेन सेल जो होती है, डिवाइडिंग सेल. सो माइटोसिस two daughter cells from one mother cell, and meiosis four daughter cells, 1 2 3 4, four daughter cells from one cell. That is the another difference between mitosis and meiosis. Okay, and also you have studied about chromosomes कि जो माइटोसिस में सेल्स बनेगी उसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, सेम 46 46 46 मतलब 23 पेयर्स. लेकिन मियोसिस में जो सेल्स बनेंगी उसमें कितने होंगे, उसमें होंगे सिर्फ 23 क्रोमोसोम. चारों सेल्स में 23 होंगे और मदर सेल में 46. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्रोमोसोम्स का नंबर. आप इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं. ये मियोसिस का डायग्राम है, मियोसिस का. तो मियोसिस में जिसमें गैमीट्स बनती हैं, ये मियोसिस है, ठीक है, इसमें गैमीट्स बनती हैं. तो 46 इनिशियली मदर सेल में है, उसके बाद चार डॉटर सेल्स चार बनती हैं जिसमें 23 23 23 23 बनती हैं. ठीक है, सो पहले एक सेल से दो सेल्स बनेंगी तो 23 क्रोमोसोम होंगे उसमें भी, फिर वो दो सेल्स और डिवाइड होकर चार टोटल सेल्स बनाएंगी. और आप याद रखिए कि जो रिजल्टिंग सेल होगी, गैमेट होंगे, उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर्स नहीं. ठीक है, सो दैट इज़ मियोसिस. और अगर ये माइटोसिस होता तो माइटोसिस में प्रोसेस यहीं पर ख़त्म हो जाती और दोनों में क्रोमोसोम 46 और 46 ही होते. सिंपल सेल डिवीज़न, आइडेंटिकल सेल्स बनती किसमें, माइटोसिस में. लेकिन मियोसिस में अलग अलग टाइप की सेल्स बनती हैं जिनको हम गैमेट्स कहते हैं. तो दैट इज़ द डिफरेंस. सो एक चीज़ और ध्यान रखिए आप कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है, ठीक है, सो जब भी एक सेल से दूसरी सेल जो बनती है तो सबसे पहले डीएनए का डिवीज़न होता है. मतलब पहले डीएनए कॉपी होता है. जब सेल कॉपी होती है, एक सेल से जब दो सेल्स बनती हैं, उससे पहले सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसकी कॉपी होती है, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग सेल डिवीज़न डीएनए इज़ रेप्लिकेटेड. डीएनए की कॉपी बनती है जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं. ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, माइटोसिस वर्सेस मियोसिस. तो ये माइटोसिस है और दूसरा मियोसिस है. तो आप देख सकते हैं माइटोसिस में एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन रही हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 46 46. लेकिन मियोसिस में एक सेल से चार डॉटर सेल्स बन रही हैं और क्रोमोसोम्स का नंबर जो है हाफ हो जाता है हर सेल में, 23, बिकॉज दीज आर गैमेट सेल्स. नाउ सो व्हाई, व्हाट इज क्वेश्चन इज दैट व्हाई gametes have only 23 chromosomes, not 46, not in pairs. Why haploid chromosome, why single chromosomes? Because as you know that in reproduction male gamete and female gamete fuse together means combine together to produce offspring cell. Offspring means जो young baby होगा उसकी पहली cell जब बनेगी, that is called reproduction. और वो सेल बाद में ग्रो करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगी. ठीक है, लेकिन इनिशियली जो है एक सिंगल सेल बनेगी जिसको हम जाइगोट कहते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन. तो वो सेल नॉर्मल सेल होगी और उस सेल में होने चाहिए 46 क्रोमोसोम, क्योंकि दैट इज़ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल और उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल्स में. ठीक है, सो टू मेक दैट gametes have only 23 single chromosomes, so that 23 and 23 combine to produce 46 cell chromosome. That is why gametes have 23 chromosomes. Okay, so 23 chromosomes from sperm combined with 23 chromosomes from egg to produce fertilized egg cell, fertilized सेल, जिसको जो बाद में बन जाता है जाइगोट. ओके, ऑलराइट.